डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश के कोने कोने से उभरती कृषि क्षेत्र की सफलता की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब के लुधियाना जिले में। यहाँ आयोजित किए गए कृषि मेले में किसानों के लिए बहुत तरह की सौगातें देखने को मिली। इस मेले में उन्नत बीज, कृषि यंत्र से लेकर खाद्य प्रसंस्करण के अद्भुत उदाहरण थे। तो देर किस बात की, आइए रुक करते हैं लुधियाना कृषि मेले का और उससे पहले नजर डाल लेते हैं पंजाब पर। भारत की कृषि की बात हो तो पंजाब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का एक राज्य है और सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि, इसलिए कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य की करीब 75% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 2/3 और दूध उत्पादन में 1/3 का योगदान देता है। इतना ही नहीं, पंजाब गेहूं का प्रमुख उत्पादक है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान मिलता है। और इस उपलब्धि के पीछे किसानों की मेहनत और कृषि वैज्ञानिक के अनुसंधान है। और इन अनुसंधानों और तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया मेले हैं। बीते दिनों लुधियाना में एक कृषि मेले का आयोजन किया गया। इसमें किसानों के उपयोग की जानकारियां तो थी ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी मंच दिया गया था जो फूड प्रोसेसिंग में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। खासकर महिलाएं एफपीओ से जुड़कर अपने रास्ते और लक्ष्य खुद तय कर रही हैं। बाजार की मांग को समझते हुए कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं और अपने साथ कई महिलाओं की जिंदगी बदल रही हैं। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਮਮੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। मेले में हमने ज्यादातर स्टॉल ऐसे देखे जिनका संचालन महिलाएं खुद कर रही थीं। खाद्य प्रसंस्करण में वैसे तो महिलाओं की भूमिका काफी पुरानी है, लेकिन बदलते समय के साथ उनका ये हुनर न सिर्फ लोगों तक पारंपरिक स्वाद पहुंचा रहा है, बल्कि आय के नए स्रोत भी पैदा कर रहा है। हमारी मुलाकात ऐसी ही एक महिला उद्यमी से हुई जो अपनी मां के साथ मिलकर घर के जायके को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਕਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੋਬ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਾਦਮ ਲਾਭ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ 10 ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਔਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਫ ਜਾਇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ,
ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ख्याति ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਮਸਾਲਾ ਐਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਚਮਚੇ ਭਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੈਂਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹਰਬਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਪਰਾਂਠਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਲੋਕੀ ਮਿਲਟਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਲ ਤੱਕਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਂਠੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੰਦੂਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ नान भी इस दे नाल ही बन जाऊगा। मैं मतलब कि आत्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है और एक अच्छे वाला हमें प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ कभी लुधियाना में, समराले, जहाँ जहाँ भी एग्जीबिशन होती है वो एक अच्छे वाला हमें प्लेटफॉर्म देते हैं। सफल होने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। इसकी मिसाल भी हमें मेले में देखने को मिली, जहां एफपीओ से जुड़कर महिला उद्यमी होममेड प्रोडक्ट बना रही हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਸਮਰਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੋਮਮੇਡ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। आत्मा मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये एक पंजीकृत संस्था है जो भारत के विभिन्न जिलों में कृषि एवं संबद्ध तकनीकी प्रसार के लिए कार्य कर रही है। ये संस्था जिला स्तर पर कृषि के विकास को स्थायित्व प्रदान करने संबंधी कृषि की गतिविधियों में संलग्न है। ये कृषि प्रसार एवं अनुसंधान की गतिविधियों के एकीकरण के साथ ही सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी व्यवस्था प्रबंधन के विकेंद्रीकरण की दिशा में किए जाने वाला एक सार्थक प्रयास है। तो आत्मा किसानों, महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायता करता है, आइए जानते हैं। हमारे यहाँ पर जो जितनी भी सुहानियाँ हैं उनको काम दिया जाता है, उनको सिखलाई दी जाती है ताकि वो अपने लेवल पे अपना काम को अपलिफ्ट कर सके। उनको ट्रेनिंग दी जाती है खेती बाड़ी महकमे से, यूनिवर्सिटी से दी जाती है ताकि वो अपने लेवल को ऊंचा उठा सके। इन्होंने हमारे साथ बीबी चरणजीत कौर है, इन्होंने ट्रेनिंग ली है, खेती बाड़ी महकमे से भी ट्रेनिंग ली है, पी यूनिवर्सिटी से भी ट्रेनिंग ली है। इस तरह से मेले उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं जो सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित थीं, लेकिन आज कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे पंजाब विश्वविद्यालय में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम लुधियाना कृषि मेले का जिक्र कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अब पंजाब विश्वविद्यालय का। देखते हैं कि यहाँ के जो वैज्ञानिक है वो किस तरह से किसानों की जिंदगी संवार रहे हैं। वर्ष 1962 में इस पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय ने अपने शोधों और तकनीकों से राज्य में खाद्य उत्पादन बढ़ाने और भारत में हरित क्रांति के युग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए साल 1995 में इसे भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया था। आज भी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ कृषि में सकारात्मक परिवर्तन करने में लगे हुए हैं और किसान की हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मेले में हमारी मुलाकात ऐसे किसान से हुई जो विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए सुपर सीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्हें खेती करते 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने धान की पराली को आग लगाए बिना उसी खेत में गेहूं की बढ़िया उपज ली। वो मानते हैं कि सुपर सीडर के आ जाने से इस काम को और भी बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं।
उनके इस प्रयास में पंजाब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। मैं बहुत धन्यवाद हाँ खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जिन्हों की गाइडलाइन के मुताबिक लास्ट टाइम मैं 10.5 एकड़ ज़मीन जो सुपर सीडर जो एक नया यूनिवर्सिटी का एक टूल है, उसके मुताबिक मैंने बिना पैडी का जो भी फसल थी उसमें कोई भी मैंने सिर्फ SMS के साथ कंपाइन चलवाई और उसके साथ सीधा स्मार्ट सीडर से उसकी बिजाई की। कुछ लोग डर रहे थे, कह रहे थे भी ये फर्स्ट टाइम है, इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें 40 किलो मैंने यूज़ किया बीज उसका और 50 kg DAP यूज़ की और 5वें दिन उसकी जो मतलब कणक थी वो बाहर आ गई, मतलब अपनी ज़मीन से, और उसका जो ग्रोथ थी बहुत अच्छी थी। और मानयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हमने कोई उसको आग वगैरह कुछ भी नहीं लगाई और पूरी टोटल पराली उस खेत में बीची रही। और उसमें हमारे सर्कल के डॉक्टर शेरजीत सिंह मांड और इनकी गाइडलाइन के मुताबिक, क्योंकि जो अक्सर टाइम टू टाइम हमको गाइड करते रहते हैं, तो इन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट की। और उसका PAU का जो वैरायटी थी PVW 826 वो मैंने बिजाई की और उसकी बहुत अच्छी यील्ड आएगी आई थिंक, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। और डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम हमारे को गाइड करते रहते हैं, जैसे कि जिप्सम है, हमारे को जिप्सम भी प्रोवाइड की इन्होंने सब्सिडी वाली, और किसानों को जागरूक करते रहते हैं। कृषि में हो रहे उन्नत बदलाव की जानकारी के लिए कृषि साहित्य सबसे अच्छा विकल्प होता है। इन साहित्यों के माध्यम से विषय विशेषज्ञ गहन शोध करने के बाद मिले सकारात्मक परिणाम किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब खेती में आ रही बाधाओं को दूर करना और किसानों की आय में इजाफा करना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का संचार केंद्र ऐसे ही साहित्यों का प्रकाशन करता है जो अन्नदाता का मार्गदर्शन करते हैं। विश्वविद्यालय किसानों को यह सुविधा भी देता है कि किसान साइट पर या WhatsApp नंबर पर मनपसंद पुस्तक को देखकर ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे बिजनेस सेक्शन पे है, संचार केंद्र के अंदर है जो, वहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी की प्रकाशनाएं जो पब्लिकेशन पुस्तकां ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। मेले से किसानों को फायदा पहुंचे, इसके लिए विभाग और विश्वविद्यालय दोनों समय समय पर नई जानकारियां किसानों तक लाते रहते हैं और इन सारी जानकारियों का सबसे अच्छा माध्यम मेले ही होते हैं। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਪਸਮ ਆਇਆ 50% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੀਡ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ अदा कर रहे हैं। ये हमारी जो स्टॉल है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंप जगराऊं में लगाया गया है। तो हमारा जो एक मार्केटिंग सेक्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी तरफ से ये स्टॉल लगाई हुई है। हमारा जो सेक्शन का जो मेन मोटिव है वो है कोई भी जो किसान है उसको कारोबारी बनाना और खेती से खेती जो बिज़नेस खेती व्यापार की तरफ लेके जाना। तो यही हमारा मोटिव है। तो उसको अगर एग्रीकल्चर से हमने एग्री बिजनेस की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए उसको प्रॉपर उसमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कैसे करनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर उसकी जो प्रोड्यूस है उसकी प्रोड्यूस की पैकिंग कैसे करनी है, उसकी लेबलिंग कैसे करनी है, उसको ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए जो भी ज़रूरी मापदंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के FSSAI लाइसेंस कैसे लेना है, GST कैसे लेना है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे लेनी है,
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे लेनी है, तो उसके साथ ही हम उसको उसकी जो क्वालिटी है उसको सर्टिफाई करते हैं। एग मार्क सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस स्कीम को वो इम्प्लीमेंट करता है। तो उसके प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस है उसको प्रोडक्ट उसको बनाने के लिए उसको पहले वैल्यू एडिशन की प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं, फिर उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है एग मार्क सर्टिफिकेशन उसके तहत उसकी पैकिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, उसकी सर्टिफिकेशन करनी है। हमारे अपनी लैब्स है, स्टेट एग मार्क लेबॉर्ट्रीज है, यहाँ पे उसका प्रोड्यूस प्रोडक्ट है जो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरह से देश भर में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग अपनी अपनी भूमिका निभाकर पैदावार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सफल किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको सीधे किसानों से मिलवाएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लुधियाना कृषि मेले में आए किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से कृषि मेले में जो आयोजन किया जा रहा है उससे किसानों को लाभ हो रहा है। ये है लुधियाना के ही किसान रूप सिंह जी, जो बीते 25 से 30 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से खेती के साथ साथ गुड़ बनाने का काम भी कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने 15 किल्ले के खेत में गन्ने की खेती कर रखी है। अपने इस प्रोसेसिंग के काम के लिए रूप सिंह जी ने बाकायदा प्रशिक्षण लिया। हालांकि मार्केटिंग में थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन रूप सिंह जी ने जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया। मैं पिछले 25-30 साल तो खेती कर रहा, पर पिछले 2 साल तो मैं गुड़ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੜ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 6 ਕਿੱਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੰਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ PAU ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਨਿਧੀ TBI ਰਾਹੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। कुछ किसान पंजाब विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लेकर कृषि के दायरे को बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे किसान तेजिंदर जी को ही देख लीजिए। ये अब खेती के साथ साथ शहद का व्यवसाय भी कर रहे हैं। उनके पास कई तरह के शहद मौजूद हैं। उनका मानना है कि किसी भी काम की सफलता इसमें है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय में पर्याप्त समय दे। हालांकि इनके यहाँ बीते 30 सालों से खेती हो रही है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ PAU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀ ਫਲੋਰਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਮੱਖੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ, ਟਾਈਮ ਦਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। कुछ किसान ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कृषि विभाग का हिस्सा सा बन गए हैं और समय समय पर आयोजित होने वाले मेलों में शामिल होते आए हैं। किसान परमिंदर सिंह जी पराली के लिए बाकी किसानों को जागरूक करते रहते हैं। वो खुद भी 35 एकड़ में खेती करते हैं और इस लंबे अंतराल में पराली को कभी आग के हवाले नहीं किया। वो मानते हैं कि पराली के सही इस्तेमाल से भरपूर उपज ली जा सकती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ
ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ 2-4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੱਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਮਰਾਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਐਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ 35 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ कणक बीजी आ, फसल पूरी बढ़िया खड़ी आ। कृषि विभाग किसानों की न सिर्फ समस्याओं का समाधान कर रहा है बल्कि किसानों को एक मंच देने का काम भी कर रहा है। मोहाली से आए किसान ने बताया कि कैसे कृषि विभाग ने उन्हें मेले में स्टॉल लगाने में सहयोग किया। वो किसानों से कच्चा माल लेकर उसे प्रोसेस करके उत्पाद बनाते हैं। इससे किसानों को भी लाभ हो रहा है और जसविंदर जी जैसे उद्यमियों को भी। खेती बाड़ी महकमा जो है उन्होंने हमारा जो है वो स्टॉल पुटअप कराया। हम यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी की तरफ से जो है वो जो जमींदारों से चीज़ बाय करते हैं उनका जो फिनिश प्रोडक्ट बना के जो है वो यहाँ पर हम मार्केट में जो है वो सेल करने के लिए आए हैं। आंवला परचेज कर रहे हैं, आर्निका जो है जड़ी बूटी वो परचेज कर रहे हैं, मेंथा जो है वो पंजाब से परचेज कर रहे हैं, उसके बाद में सफ़ेदे का तेल जो है वो पंजाब से परचेज कर रहे हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो सीधा हम लोग जो है वो जमींदारों से परचेज करते हैं, जिससे एक तो उनकी भी इनकम में जो है वो उनको इजाफा होता है, दूसरा जो है वो हमारे को इनसे जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बिना किसी कमीशन के, एक्स्ट्रा कमीशन के सीधा जो है वो सस्ते दाम में और वाजिब दाम में हमारे को मिल जाता है। हम लोग फिर इसको जो है वो जैसे बालों के शैम्पू, बालों का तेल, दर्दों के तेल, ऐसे प्रोडक्ट्स में जो है वो हम लोग इसको जो है वो फिर बनाते हैं, जो है वो हम लोग जो है वो आगे यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसके लिए खेती बाड़ी महकमे ने हमारे को जो है वो पूरा बैकग्राउंड जो है वो इसमें बना के दिया हुआ है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसके अंदर 15 लोग काम कर रहे हैं और हम जो है वो उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सेल करते हैं, जो कि जमींदारों से लेके जमींदारों को ही जो है वो बेचा जाता है, लेकिन कच्चा मटेरियल लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट जो है वो हम बना के बेचते हैं और खेती बाड़ी महकमा हमारे को जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा मदद कर रहा है। किसान मेले किसानों को कृषि की राह में आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये मेला उन किसानों का भी पथ प्रदर्शन करता है जो कृषि के क्षेत्र में नए हैं। मेले में विशेषज्ञों द्वारा किए गए नए शोधों और किसानों की अथक मेहनत का परिणाम है कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तो सफल किसान कार्यक्रम में आज आपने जाना कि ये जो कृषि मेले आयोजित किए जा रहे हैं ये किसानों के लिए कितने लाभकारी साबित होते हैं। जो शोध और अनुसंधान कृषि क्षेत्र में होते हैं वो इन मेलों के जरिए किसानों तक पहुंचता है। बहरहाल आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगी हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।